ठीक था उड़ूसन के खे स्टार्ट हुआ लुखा ये टॉपिक का वक्त की ده important topic ده ठीक ده كالسيوم او فوسفورس خير ده الحمد لله important topic ته زما خیال تاسو ته سر نجم الدین سے سنه سویلم ده کنه زه به کلاس شروع کوم په انګلیش کې بالم ښه او لږ ډیر اردو به کوم ٹھیک ده Excuse me, sir. or homeostasis. The learning objectives of the class is at the end of the lecture, you will be able to describe sources of calcium and phosphorus. These learning objectives are based on the Sarjita Sovar J slow नहीं their slow there. Yes sir J slow now These outlines are based on the syllabus provided by the KMU. Okay, so these are the minimum. You must know these sources of calcium and phosphorus, requirement of calcium, absorption of calcium, forms of the calcium, functions of calcium, regulation of calcium and phosphorus, calcium and phosphate related abnormalities, briefly. So there is nothing to say about the introduction. We all know that calcium is a very important mineral in the human body. The other important mineral in the body is iron. And another one is calcium, equally important. It is the most abundant mineral in human body. So it's an MCQ, okay? It is the most abundant mineral in human body. What are the sources of calcium? I hope you must know the sources of calcium. Milk and milk products are the main source of calcium. What are milk products? Cheese, etc. You all know what are the products of milk. Matlab dairy products. They are the rich source of calcium. At the same time, these milk and milk products also contain vitamin D, and we will know in a while that vitamin D is very important in calcium homeostasis. So milk is a good source of calcium and its related compound, for example, vitamin D. Calcium is also found in abundant quantity in egg yolk, beans, vegetables like cabbage, tomatoes. Okay, these are the sources of calcium. You must know these. And I hope you all know this. What are the daily requirements of calcium? First of all, I will discuss calcium, then phosphorus. Okay? What is the recommended daily allowance? What does recommended daily allowance mean? आप में किसी को पता है recommended daily allowance का क्या मतलब है? कोई भी डिफाइन कर सकता है इंग्लिश में या उर्दू में, कोई प्रॉब्लम नहीं. कमेंट्स में लिख ले प्लीज. रिकमेंडेड डेली अलाउंस का मतलब क्या है? Required amount per day. This is part of the definition. It is the minimum amount of any nutrient required by the body. So the second part is to maintain normal homeostasis. आपने ये बताना है, ठीक है? सोना पकार दी, नुसला पकार दी. For the maintenance of normal homeostatic activity and normal functions. This is known as RDA. I haven't write RDA, so you should see in your book. दम्मा वली ना लिख ले, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग वैल्यू पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाते हैं. फिर जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है. The requirements of calcium is increased in lactating mothers. Those mothers who are nursing their young ones, they need lots of calcium. Why? Because they have to supply the calcium in the milk so that the bones and teeth of the fetus, sorry, the newborn, the infant should properly grow and develop. Okay. Pregnant women, same concept. The mother is
requiring the calcium for the fetus because the bones are developing and so on. Growing children because they are growing, their bones need calcium and vitamin D. जहाँ पर कैल्शियम की बात आएगी तो विटामिन डी की बात भी आएगी, ठीक है? It is recommended you both vitamin D as well as calcium if we want to prescribe calcium. सिर्फ कैल्शियम देने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो विटामिन डी डिफिशिएंट सोसाइटी है, बहुत कॉमन है विटामिन डी डिफिशिएंसी। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, विटामिन तो पढ़े हैं ना, तो ये बहुत कॉमन है। विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से बोन प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट है वो ये क्या है, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, growing children, they all need calcium in greater amount as compared to a normal adult who have completed his growth. Normal जो बंदा है उसके लिए कैल्शियम क्यों जरूरी है? वो तो बोन्स और टीथ तो उसके बन चुके हैं, रोज रोज तो हड्डियां नहीं टूटती ना। नॉर्मल बंदे के लिए कैल्शियम क्यों जरूरी है? तो कैल्शियम और फास्फोरस लोग पढ़ चुके हैं ना, कैल्शियम क्यों जरूरी है नॉर्मल बंदे के लिए? कोई बता सकता है? आरडीए मैंने पढ़ लिया कि डेली कुछ ना कुछ अमाउंट हमें चाहिए, तो कैल्शियम क्यों चाहिए? बोन्स तो बन चुके, मसल फंक्शन, ठीक है, कोई और? शाबाश, ब्लड क्लॉटिंग, कोई और? मेटाबॉलिज्म, शाबाश। आई थिंक योर आइडिया इज क्लियर। सो मैं ये बताना चाहता था कि कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ बोन के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीथ के लिए जरूरी नहीं है, इट हैज अ लॉट्स ऑफ फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है? जो हमारा टारगेट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस लेक्चर का, उसमें फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, जो मैंने बहुत अच्छी तरह वो कर लिए है, ठीक है, समराइज कर ली है, आप लोगों को वो याद करनी है। तो कैल्शियम सिर्फ बोन्स और टीथ के लिए जरूरी नहीं है। एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नॉर्मली 25 to 75% कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। मैंने ये वैल्यू क्यों लिख ली? आमतौर वैल्यूज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख ली है 25 to 75% कैल्शियम जो डाइट में होता है वो एब्जॉर्ब होता है, इट इज एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। तो यहाँ इस वैल्यू को देख के पहला जो बंदा वो नोट कर लेता है, क्या बात नोट करता है? वो ये बात नोट करता है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, 25 to 75%, दिस इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, ठीक है? तो कैल्शियम में इतनी वेरिएशन क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बंदे का विटामिन डी स्टेटस क्या है। विटामिन डी डिफिशिएंट बंदा होगा तो कैल्शियम डाइट में अगर ज्यादा भी होगा तो उसमें कैल्शियम की कमी आ सकती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बॉडी की नीड क्या है? अगर बॉडी की नीड ज्यादा होगी तो वो अपने हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट कर लेगा और कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, शायद 75% एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि बॉडी को जरूरत है। तो किन लोगों को जरूरत होती है? पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके, प्रेगनेंसी में जरूरत होती है, लैक्टेटिंग वुमेन में जरूरत होती है, चिल्ड्रन में जरूरत होती है, तो उनमें इन्फेंट्स में, शाबाश, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। क्यों? आगे हम पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि उनका जो हार्मोनल सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो विटामिन डी स्टेटस पे डिपेंड करेगा, बॉडी की नीड पे डिपेंड करेगा, कैल्शियम इंटेक पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा कैल्शियम इंटेक ज्यादा है तो उसका ज्यादा पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूजन ज्यादा, डोज ज्यादा एब्जॉर्प्शन। अगर कम कैल्शियम लेंगे हम तो कम एब्जॉर्ब होगा, दिस इज सिंपल, ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने का पॉइंट जो है वो विटामिन डी है। बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी, हमारा जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डिफिशिएंट है, ठीक है? क्यों डिफिशिएंट है? आप लोगों से एमसीक्यूज में, आप लोगों से वाइवा में पूछ सकते हैं ना कि क्यों विटामिन डी डिफिशिएंट है हमारी सोसाइटी। तो आप लोगों ने विटामिन डी पढ़ा है, हमारी जो सन एक्सपोजर है, ऐसे फॉर एग्जांपल कालाम है, स्वात में भी ऐसे जगह है जहाँ पर धूप सही नहीं निकलती, तो हमारी इलाकों में विटामिन डी डिफिशियंसी क्यों कॉमन है? क्योंकि यहाँ पर लोग सर्द इलाकों में रहते हैं, प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं होता। दूसरा, जो हमारा जो ट्रेडिशंस है, हम बॉडी को कवर करके बाज दफा अगर बाहर भी कुछ निकलता है, फॉर एग्जांपल फीमेल, तो वो वाइल में निकलते हैं, ठीक है? डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो वो बॉडी को कवर करके निकलती हैं, तो
इस वजह से भी कैल्शियम विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज हाईएस्ट इन प्रेगनेंसी, इन्फेंसी वगैरह वगैरह। ओल्ड एज में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, ठीक है, वो भी ऑब्वियस है। ओल्ड एज में बोन बनने की बजाय उसमें बोन टर्नओवर ज्यादा हो जाता है, तो कैल्शियम की इतनी जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने नोट रखना है कि कौन सी साइड से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हर किसी को पता होना चाहिए, जो मेडिकल स्टूडेंट होगा उसको तो इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि हर चीज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि उसमें माइक्रोवेलाई वगैरह होते हैं। तो आपने स्पेसिफिक साइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को नोट करना है। कुछ ना कुछ आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, निमोनिक जो आयरन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, जिंक का बताया हुआ था। किसी को याद है जिंक? जिंक कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? जिंक कौन सा निमोनिक मैंने बताया था? चाहते याद भी? आई थिंक 2 मंथ्स बैक जब मैं आयरन की लेक्चर लेना आता तो वहां पर मैंने जिंक की एब्जॉर्प्शन के बारे में आप लोगों को एक क्लू, शाबाश, जिजुनम, जीनत जहान मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जीनत जहान याद है? जीनत जहान, जिंक जहान जिजुनम, ठीक है। कैल्शियम तो सिंपल है, डीसी, डीसी सिंपल है, कैल्शियम फ्रॉम द ड्यूडेनम, ड्यूडियम से कैल्शियम। जो उसे उल्टा करना चाहते हैं उसका भी काम हो जाएगा, सीडी, सीडी भी सब पहचानते हैं, कैल्शियम फ्रॉम दी ड्यूडेनम। आयरन के बारे में क्या ख्याल था? आयरन, आयरन इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट्स है ये। मुझे ये नहीं चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। शाबाश, 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 आईडी कार्ड, शाबाश, बिल्कुल। आयरन, ठीक है। इसमें आप लोगों ने अभी कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं कि कौन से फैक्टर्स की वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है और कौन से फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज होती है। आपने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो याद रखने हैं। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल का क्या मतलब है? कैल्सीट्रायोल का मतलब क्या है? एक्टिवेटेड विटामिन डी, ठीक है। आपसे अभी से अपने आप को मतलब एक्टिव विटामिन डी, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेंगे अभी कि एक्टिव विटामिन डी का क्या रोल है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में। पीटीएच, पीटीएच का क्या रोल है ये भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एसिडिटी भी हम, एसिडिटी असल में ये गट की एसिडिटी जो कंटेंट है उसकी एसिडिटी, उसको भी असर है, और ब्लड की जो एसिडिटी है उसका भी इस पे ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ लेंगे अभी कि एसिडिटी आपने फिर याद रखना है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स अगर डाइट में ज्यादा है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन चार्ज प्रोटीन्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकती है, ठीक है। लेक्टोज, लेकिन आपने 3 याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, या 2, जो पहले वाले 2 है कैल्सीट्रायोल और पीटीएच, दोनों को आपने याद रखना है, ठीक है। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये लिस्ट आप वो कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे को हम कैल्शियम दें, कैल्शियम मतलब ऐसे ड्रग्स अवेलेबल है जिसमें हम कैल्शियम यूज करते हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक पे देंगे या फुल स्टमक पे देंगे? अगर किसी को हमने कैल्शियम की ड्रग्स प्रिस्क्राइब की है तो वो कौन से, उसको हम क्या एडवाइस करेंगे कि इसको फुल स्टमक पे ले या एम्प्टी स्टमक पे ले? दे लिस्ट, क्यों एम्प्टी, क्यों फुल? और एम्प्टी वालों का क्या वो है? व्हाट इज द रैशनल ऑफ गिविंग कैल्शियम बाय एम्प्टी स्टमक? इज देयर एनी? और प्रोटीन्स चिखरे, हाँ, तो ठीक है, आगे आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, आयरन बसंग खोड़ो मुंगा मुंगते आयरन लग रहा है कहीं माता आयरन का फुल स्टमक को एम्प्टी स्टमक को? आयरन को हमने मील्स के दरमियान लेना था या मील के साथ लेना था?
आयरन एम्प्टी स्टमक पे था, ठीक है, याद भी था। हाँ, डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन फैट्स चाप के मख के हवाले और विद फैट्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। क्यों? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैट्स विद कैल्शियम? सब प्रोसेस की कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फैट्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करता है? मुझे एक वो चाहिए, वन वर्ड। सेपोनिफिकेशन, combination of calcium with the fatty acids। सोप फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है सेपोनिफिकेशन, तो सेपोनिफिकेशन की वजह से फैट्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। प्रोसेस याद से आते ही फैट्स एंड कैल्शियम सेपोनिफिकेशन। हाई फॉस्फेट कंटेंट, सिंपल ले, फॉस्फेट ज्यादा होगा तो कैल्शियम के साथ कंबाइन होगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम, सेम, मैग्नीशियम compete करता है कैल्शियम के साथ, तो कंपटीशन की वजह से भी एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि दोनों पे कौन सा चार्ज है? डबल पॉजिटिव। तो जो ट्रांसपोर्टर्स है वो अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो सेचुरेट होंगे, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के चांसेस फिर कम होंगे, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मतलब साथ साथ एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे वाया कंपटीशन। आपने वो याद रखनी है, ठीक है। फैट्स सेपोनिफिकेशन, फॉस्फेट साल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, आयनिक बॉन्ड दोनों बनाएंगे, साल्ट फॉर्मेशन। मैग्नीशियम कंपटीशन, फाइटेट्स, फाइटेट्स पर सकिया लगा। कौन सी खुराकों में फाइटेट्स होते हैं? ऐसी कौन सी खुराक है जिसमें फाइटेट्स बहुत ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं? चाहते याद दी और ऑक्सलेट पर सकी। अपने पेशेंट को फिर बताना है ना, कैल्शियम लेने, टोमेटो में ऑक्सलेट से, ठीक है, टोमेटो में ऑक्सलेट से। फाइटेट्स, फाइटेट्स सीरियल्स में ज्यादा होंगे, ठीक है, सीरियल्स। सीरियल्स तो आप लोगों को मैंने बताया था, मेज, व्हीट, राइस एटसेट्रा, इसमें फाइटेट्स होते हैं। तो ये फाइटेट्स भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। असल में ये जनरल सी एक कॉन्सेप्ट है। फाइटेट्स डाइवेलेंट जो आयंस होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, आयरन को भी कम करता था। तास्ताबयादी आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी कम करता था फाइटेट्स, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी कम करेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। एब्जॉर्प्शन किन फैक्टर से इंक्रीज होती है, एब्जॉर्प्शन किन फैक्टर से डिक्रीज होती है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ ले, मैंने आगे जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले हैं। यू मस्ट हैव पिन एंड पेंसिल, सॉरी पेंसिल एंड रजिस्टर। मेरा वो तरीका थोड़ा चेंज है, मैं स्लाइड्स को भरता नहीं हूँ, ठीक है। ज्यादातर बातें मैं बगैर स्लाइड्स के पढ़ता हूँ, आप लोग उसकी नोट करते जाइए। लेक्चर में इंटरेस्ट बाकी रहने के लिए मैं ज्यादातर ऐसे ही बताऊंगा। दस इवे मताजान सर पिन और कॉपी नोट के डी पॉइंट पॉइंट्स पे मिस्टेक हो रहा है। यदि हर किस मतलब दान रहे जो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की है कि इसमें सारा वो कंटेंट अवेलेबल है, नहीं, ये कसदन मैंने ऐसा किया है, ठीक है। आप लोग खुद नोट करते जाए, नोट करते जाए साथ साथ अपने उस ज़ौक़ के मुताबिक। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। क्या मतलब है कंपार्टमेंटलाइजेशन? इसका मतलब ये है कि कैल्शियम बॉडी में कंपार्टमेंटलाइज हो गया है, सॉरी यार, कंपार्टमेंटलाइज हो गया है। कंपार्टमेंट्स का मतलब है ये बिल्कुल पोर्शंस में डिवाइडेड है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है? असल में ये दो बड़े कंपार्टमेंट्स है जो आपने याद रखनी है। माते लग रहा है कि शाबाश जल्दी करो, आप लोग कैल्शियम और वो पढ़ चुके हैं। कौन से दो बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स में कैल्शियम बॉडी में मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं फॉर ईज? कौन से हैं? शाबाश। वन कंपार्टमेंट इज द बोन, व्हाट इज द अदर कंपार्टमेंट? ब्लड नहीं, जो प्रिसाइज टर्म है वो बताए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो दो बड़े बड़े जो कंपार्टमेंट्स है वो बोन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स है। इस स्लाइड पे आप लोगों की मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, आप लोग उसको खुद नोट कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो एक कंपार्टमेंट जो बोन है, 99% ऑफ द टोटल बॉडी कैल्शियम वो आपके बोन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोन इज द रिजर्वायर ऑफ द कैल्शियम। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? हम हालात में हम जब रिजर्वायर का टर्म सुनते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि रिजर्वायर में कोई चीज जमा होगी, नहीं। रिजर्वायर की खसूसियात ये, देयर आर टू क्वालिटीज ऑफ अ रिजर्वायर।
at the time of need, a reservoir will provide you with whatever the thing in question, okay? Or at the second, if the thing is increased in the body, if the stuff is increased in the body, the reservoir will accommodate it. तो bone हमारे body का जो कैल्शियम लेवल है, हमारे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है, वो इस रिजर्वायर की वजह से मेंटेन है। ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो वो ब्लड से इस रिजर्वायर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस रिजर्वायर में बहुत ज्यादा स्पेस है, ये एकोमोडेट कर सकता है। और अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो ये रिजर्वायर उसको प्रोवाइड करेगा। तो बोन इज द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। इसको बहुत सारे नामों से मतलब वो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है। इट इज द बॉडी कैल्शियम बैंक। हमारे बॉडी का जो कैल्शियम बैंक है वो बोन है। कुछ लोग इसको सिंपली वो कैल्शियम रिजर्वायर से वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है बोन में दो पार्ट्स होते हैं। बोन का एक कोलाजन पार्ट है, प्रोटीनिशियस पार्ट, जो और दूसरा उसका मिनरलाइज्ड पोर्शन है। जो मिनरलाइज्ड पोर्शन है वो बोन का वो कैल्शियम और फास्फेट की साल्ट्स की शक्ल में मौजूद है। जो साल्ट वो कौन से क्रिस्टल की शक्ल में वो साल्ट्स मौजूद है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल की शक्ल में। तो हमारा जो कैल्शियम है वो हमारे बोन में फास्फेट के साथ बाउंड होके कुछ साल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। आप लोग ये नाम बार बार सुनेंगे, तो आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ये सिंपल स्टफ, आई डोंट थिंक ये एमसीक्यू में आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल की शक्ल में। कार्टिलेज में कैल्शियम हो सकता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कार्टिलेज में कैल्शियम हो सकता है? कल अगर मैं एक टर्म बता दूं एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आप लोग उस पर एतराज करेंगे? इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कार्टिलेज इज मिनरलाइज्ड। द स्टेटमेंट ठीक है गलत है? In normal condition, cartilage cannot be calcified, mineralized, ठीक है। कार्टिलेज में अगर कैल्शियम जमा होगा तो इसका मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ गई है, ये पैथोलॉजिकल है। या कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो उसमें कैल्शियम जमा हो रहा है। कार्टिलेज और जो बोन का इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस है वो यही है कि एक मिनरलाइज्ड है, कैल्सिफाइड है, दूसरा मिनरलाइज्ड नहीं है। इसलिए हम बोन को कहते हैं मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज अ नॉन मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए तो वो सॉफ्ट है यार। प्रोटीन्स तो दोनों में होते हैं। अच्छा, जो दूसरा बिगेस्ट कंपार्टमेंट है या जो इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट है कैल्शियम का, वो है इंटरस्टिशियम। और हमें पता है इंटरस्टिशियम में प्लाज्मा होता है, सॉरी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ये दूसरा बड़ा कंपार्टमेंट है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड नॉट मिनरलाइज्ड cause got nourished by diffusion, ठीक है, सही है। और उसमें वो सेल्स नहीं है जो मिनरलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। कार्टिलेज में वो सेल्स नहीं है, असल वजह इसकी ये है जो मिनरलाइजेशन कराते हैं। अच्छा, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम दोनों में कैल्शियम डिवाइडेड है। तो प्लाज्मा में जो कैल्शियम है वो किन फॉर्म्स में है? ये भी एक एमसीक्यू है। 3 फॉर्म्स में प्लाज्मा में कैल्शियम अवेलेबल है। एक को हम कहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म, एक को हम कहते हैं बाउंड फॉर्म, एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म तो सिंपल है, फ्री फॉर्म है, कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म है। 50% ऑफ द प्लाज्मा कैल्शियम वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है। इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, जो फ्री फॉर्म होता है वो एक्टिव होता है। तो कैल्शियम का जो एक्टिव फॉर्म है बॉडी में वो यही आयोनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। बाउंड फॉर्म किस चीज के साथ बाउंड होता है? जो ब्लड की प्रोटीन्स है, स्पेशली अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन के साथ कैल्शियम बाउंड होता है। ये 40% है, ठीक है। और इस पे पीएच का बहुत असर है। दोनों एमसीक्यूज है। अल्ब्यूमिन ये तो हर किसी को पता होगा, अल्ब्यूमिन का काम बॉडी में ट्रांसपोर्ट है, बाइंडिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस है, ये तो सिंपल है। पीएच का इस पे क्या असर है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, ताकि मुझे पता चले कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट इस पे है या नहीं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये आइंस के साथ, एनाइंस के साथ कैल्शियम की कॉम्बिनेशन को कहेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट एनाइन है फॉस्फेट एक्सेट्रा। तो 10% कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। दोनों बाउंड फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनएक्टिव होते हैं क्योंकि दोनों असल में कैल्शियम इसमें फ्री नहीं है। कार्टिलेज पे बारे की सिंपल खबर दा वावरी په پښتو کې چې په کارټیلیج کې منرل نشته. تاسو والته وینئ نه چې باغ کې کیلشیم دی. په نورمال کارټیلیج کې د عمر سره په کارټیلیج کې کیلشیم جمع کیږي، خو په نورمال فزیولوژیکل کنډیشن کې په کارټیلیج کې کیلشیم نشته. کارټیلیج کې کیلشیم راغی دا خو یا د میچوری کارټیلیج دی یا په بلډ کې د کیلشیم لیول ډیر زیات سیوا دی، نو نورمال خبرې نه دي. تو کارټیلیج از ا نان منرلایزد connective tissue, that is why it is soft. ये soft होते हैं, ये mineralize नहीं होता. Simple है हाँ. अच्छा प्लाज्मा ला वापस राशि ionized form, bound form, complex form 50 40 10. 50% एक्टिव फॉर्म में है कैल्शियम, फ्री कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम, और 40 और 10 दोनों कंबाइन करके भी तकरीबन 50 है. तो 50 जो है वो इनएक्टिव है. उस इनएक्टिव में 40 बाउंड टू प्रोटीन्स एंड 10 बाउंड टू फॉस्फेट और अदर एनाइंस. The bound form especially certain chondrocytes سره نرش کی وای تاسو وایئ چې دا سلونه کیلشیم خوري. सेल is nourished by oxygen and glucose. कैल्शियम उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कैल्शियम का. हाँ कैल्शियम पर कार्टिलेज की करनी नो कॉन्ड्रोसाइट पमरीना. कैल्शियम जो हमारे बोन में प्रेजेंट है वो स्ट्रेंथ के लिए प्रेजेंट है, और सेकंड हमारे बोन्स रिजर्वायर है कैल्शियम के. दा कोई फंक्शन दे नोर को कैल्शियम खैर दे. देयर इज नो नीड फॉर अ कॉन्ड्रोसाइट टू टेक कैल्शियम, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ड्रोसाइट के लिए कैल्शियम की जरूरत नहीं होती. ठीक है. تاسو چې کله پیدا کیږئ موږ ټول چې کله پیدا کیږو یا پیدایش نه مخکې زموږ ټول سکیلیټن په کوم فارم کې؟ په کارټیلیج فارم کې، نان منرلایز فارم کې. منرلایزیشن شروع شي او دا بون ته کنورټ شي. ها کانسپټ دغه ځای کې دی. دا باندې خبرې مه میکس کوئ چې کیلشیم کاربوسایډ ته نه میلاویږي نو ته بس نقصان وشي. نه نقصان ورته هیڅ نه کیږي. اته هغه اکسیجن اته هغه ग्लूकोज वायर डिफ्यूजन मिलावीږي. ها अच्छा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब उसके लिए हम रुख कर लेते हैं पीएच. पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. कैल्शियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है. तो ब्लड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो हाइड्रोजन जाके अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा. अल्ब्यूमिन के साथ इतने साइट्स उसमें नहीं होते, वो तो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ साइट्स है. तो अगर हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ कंबाइन होगा तो कैल्शियम अल्ब्यूमिन से रिलीज होगा, तो बाउंड कैल्शियम की मिकदार कम होगी, फ्री कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी. तो पीएच का कम होना मतलब एसिडिटी का बढ़ना मतलब हाइड्रोजन आयंस का ज्यादा होना. इसकी वजह से फ्री कैल्शियम के साथ क्या होगा? ये एमसीक्यू है. डिक्रीज इन पीएच causes increase in free calcium. The खबर हम नोट करा. This is a very important concept in basic sciences as well as in medicine. Acidosis will cause increase in free calcium. The note का आंसर पखपल दगा. Acidosis will cause increase in free calcium. कॉन्सेप्ट तमाम हुए. अगर एसिडोसिस होगी तो हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बढ़ेगी. हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बढ़ेगी तो हाइड्रोजन जाके अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगा और कैल्शियम आयंस को डिस्प्लेस करेगा. तो वो कहाँ पे जाएगा? प्लाज्मा में जाएगा, फ्री फॉर्म में जाएगा. तो इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म इंक्रीज होगी. उलट हाइड्रोजन कम होगा तो हाइड्रोजन कम होगा तो क्या होगा? अल्कलोसिस होगी. अल्कलोसिस की वजह से जो साइड से अल्ब्यूमिन के वो खाली हो जाएंगी, तो ब्लड में जो फ्री कैल्शियम हो वो जाके अल्ब्यूमिन के साथ स्टिक हो जाएगा. तो कैल्शियम की लेवल जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो कम हो जाएगी. तो अल्कलोसिस causes decrease in free form of calcium and acidosis causes increase in free calcium. دا خبره نوٹ کړه چې مخکې زما ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? यस. इंटरस्टिशियम में कैल्शियम सिर्फ एक ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो है आयोनाइज्ड फॉर्म. कॉन्सेप्चुअली भी ठीक है. ये जो सेल्स है ये इंटरस्टिशियम से अपनी वो मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह आयंस मिनरल्स लेते हैं. तो जिसमें वो एक्टिव फॉर्म है वो
इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होता है। बाउंड फॉर्म कैसे इंटरस्टिशियम में जाएगा? बाउंड फॉर्म तो वो तो बाउंड है, ठीक है, वो इंटरस्टिशियम में नहीं जा सकता। तो ब्लड से फ्री कैल्शियम इंटरस्टिशियम में चला जाता है, इंटरस्टिशियम से सेल्स में चला जाता है। हाँ, अल्ब्यूमिन चार्ट, व्हाट अल्ब्यूमिन, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सोना रहमान, अल्ब्यूमिन चार्ट समझ नहीं आई क्वेश्चन की, जल्दी करें, शाबाश। अल्ब्यूमिन ब्लड में होता है, ठीक है, अल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। हमारे ब्लड में बहुत सारा अल्ब्यूमिन होता है, और ब्लड के अल्ब्यूमिन भी, हाँ, ढेर शे मकदार की बगी अल्ब्यूमिन पर ब्लड के कारू में भी, और ब्लड के साथ साथ वक्त इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स दी, यो तो अल्ब्यूमिन्स बल तो ग्लोब्यूलिन्स। नो अल्ब्यूमिन चिदे दागा ढेर फंक्शंस दी, यो फंक्शन चिदे दागा दे मतलब ट्रांसपोर्ट सीजन पर ब्लड की रेवज ने बल से तोड़ी बल फंक्शन चिदे कैरियर फंक्शन दागा ट्रांसपोर्ट या कैरियर फंक्शन शो बल नूर फंक्शंस तक बदे सेट बांधे दागी वजन जरूरत निश्ता। नो मुख्तलिफ सीजन होता बाइंड की यो पकी दाता सोल acidosis condition body the para kone shuma usama, what is the question? Acidosis what? Acidosis का मतलब है increase in hydrogen ion concentration in the blood, acidemia। acidosis मतलब acidity increase हो गई। नो usama question सर है ګوره دا خو البومین مثال زه خپل سټوډنټان له دا ورکوم، البومین مثال چې دی هغه د سوزکي دی، په سوزکي کې سیټونه خاص قسمه سیټونه یې کنه یاره دنه خو پکې لس کسه راځي نو البومین ته خو یوازې کیلشیم نه انخلي، هایدروجن ورته هم انختی شي، نو که ستاسو سره هایدروجن ډیریږي نو دی ځي او کیلشیم د سیټ نه کوزوي، نو کیلشیم به چېرته تاویږي؟ سړک ته به تاویږي که نه، سړک د بلډ دی، نو ستاسو هایدروجن چې کوم دی هغه به بالکل کیلشیم پلازما ته ارته وي، هایدروجن مطلب اسیډیټي، نو اسیډیټي به ستاسو سره په بلډ کې د فری کیلشیم لیول سیوا کوي، د فری کیلشیم لیول به سیوا کوي، ټیک شو، کلیر دی. او د الکالوسز کوم چې اسیډیټي کم شي الټه کوي، ها नॉर्मल ब्लड लेवल्स, इसको आपने इस लेवल पे अगर याद ना हो तो ठीक है, सेकंड ईयर में इसके लिए वो कुछ ना कुछ उनके सिलेबस में है, नॉर्मल वैल्यूज याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल कैल्शियम, टोटल का मतलब क्या है? ये एक टर्म है जिसका मतलब है टोटल कैल्शियम का मतलब है फ्री फॉर्म, बाउंड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमारे ब्लड में 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल टोटल कैल्शियम है। शायद मंगो ने तकरीबन निम फ्री है, निम बाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। आयोनाइज्ड कैल्शियम तकरीबन इसका हाफ है, 4.5 to 5.5। डिफरेंट बुक्स में ये थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज दिए गए हैं, आप जस्ट कॉन्सेप्ट को देख ले, ठीक है, इतना वो नहीं है। अच्छा, फंक्शंस, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिवाइड किया है हमारे बॉडी में, मुझे हमने डिवाइड कर लिया कि बॉडी में जो कैल्शियम है वो या बोन्स में प्रेजेंट है, या प्लाज्मा में प्रेजेंट है, या इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है, ठीक है। इंटरस्टिशियम का राब्ता सेल्स, हाँ, बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। अभी हम पढ़ेंगे उसामा कि एसिडोसिस की वजह से कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी तो एबनॉर्मल है, ठीक है, एसिडोसिस को पखपलम एबनॉर्मल दे, नो कैल्शियम लेवल का गड़बड़ की के दाम एबनॉर्मल दे, देर डिटेल लो बदे लेवल ना जाई, जस्ट को कांसेप्ट तलमादर को फर्दर जरे एसिडोसिस और द कैल्शियम पदा के दुमर दिन नशन न होते तासो फर्स्ट ईयर वाले तासो फल सिलेबस तब महदूद है, तो एमसीक्यू का चरपदी से क्लिनिकल टाइप एमसीक्यू मतलब راشي ته او د وسط د کلینیکل کانسپټ په ځین کې لګ لګ خودل شروع کړي، نو بیا د خلکو نه بیسیک سیری وروسته نو دا په دې ځای کې دی ول سره لینک دی، بس دومره فی الحال یاد وساتئ چې تاسو ایسیډوسس بس تاسو په بلډ کې د کیلشیم فری فارم سیوا کوي، بس که تاسو له دومره درځي د فرست ایئر زبر مطمئن یم. ها زه نه غواړم تاسو په ډیټیلز کې لاست شئ، خو دا هم نه غواړم چې تاسو نه امپورټنت ډیټیلز مس شي. ها इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो अब जो बॉडी का जो कैल्शियम है उसको मैं दो में डिवाइड कर रहा हूँ, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम होता है मतलब इनके फंक्शंस क्या है? स्केलेटल मसल, आप लोग फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ लोगे कि मसल कंट्रैक्शन, स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन होती है उसमें इंट्रासेलुलर कैल्शियम यूज होता है। आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा है। ये कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? ये कैल्शियम स्टोर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सेल के अंदर है, और स्केलेटल मसल में ज्यादातर अंदर का कैल्शियम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको मैंने शीमा सवई
څه کوېسچن دی؟ नो, तो स्केलेटल मसल में ये भी एक कॉन्सेप्ट है, स्केलेटल मसल में सेल के अंदर वाला कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। सेकंड, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स, आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ लोगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से रिलीज होते हैं उसमें भी कैल्शियम की जरूरत होती है। सेल के अंदर जो कैल्शियम जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है ये आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ लोगे, चलते वो जरूरत नहीं था। आप लोग बस इतना याद रख लें कि नॉर्मल जो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स अपने ग्लैंड में पैदा होते हैं, ब्लड में उसकी रिलीज के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, सेल में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में एक्टिवेट करता है। कार्डियक लामाजा स्केलेटल ज़का फिलहाल स्केलेटल के सेल की चिकम दन कैल्शियम देगा इस्तेमाल शो दा मेडिकल कॉन्सेप्ट है पास नूर वो मखे तबाही सद इंट्रासेलुलर कैल्शियम खबर हुकूमा, सेल का अपना जो कैल्शियम है जो स्टोर्ड फॉर्म में है या बाहर से आया हुआ है, लेकिन सेल के अंदर ज्यादातर वो मतलब पहले से मौजूद है, पहले से एक्ट एज अ कोफैक्टर, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स को सेल के अंदर एक्टिवेट करता है। तो कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर है, कोफैक्टर तासोपेजन है, वो चीज़ जो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो वो आइंस हो सकते हैं, मतलब कैल्शियम भी एक आइन है। तो मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट, कैल्शियम के बगैर काम नहीं करेंगे। इंट्रासेलुलर कैल्शियम का एक अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल सिग्नलिंग। आप लोग बायोकेमिस्ट्री में शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ लोगे सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर के बारे में आपका कुछ कॉन्सेप्ट है? सेकंड मैसेंजर से तो वही, अच्छा, हो रही हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स है जो अपना काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्मोन, कोई हार्मोन हो पे एक्शन करेगा, ठीक है। तो हार्मोन असल में फर्स्ट मैसेंजर है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन را پیدا شو کنه د خپل ټارګټ ته ځي او هغه له بس پیغام وړي، میسنجر دی، دا فرست میسنجر دی. او ډیر شي هارمون دي چې سیل ته نشي دننه کېده، هغه خپل برین ته بایند شي او په سیل کې بدن نه څه چینجز راولي او یو بل کیمیکل په سیل کې دننه سیوا شي، نو هغه ته بیا مونږ وایو सेकंड मैसेंजर। तो कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर है बॉडी में, बस आप लोग इतना याद रख ले, आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लोगे कि फर्स्ट मैसेंजर का क्या मतलब है, सेकंड मैसेंजर का क्या मतलब है। तो हमारी बॉडी में सेकंड मैसेंजर की एग्जांपल में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम एक सेकंड मैसेंजर है सेल सिग्नलिंग में, सेल सिग्नलिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कुछ फंक्शंस है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मसल कंट्रैक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से कैल्शियम आता है और अपना काम करता है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में जब हम कार्डियक मसल को कंट्रैक्ट करते हैं या स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करते हैं तो बाहर से कैल्शियम आ जाता है और वो चेंजेस करके मसल को कंट्रैक्ट कर लेता है। ये पहले से स्टोर्ड कैल्शियम का रोल इसमें बहुत कम है। दाम एमसीक्यू देखा कॉन्सेप्ट है कि पर स्मूथ मसल के और कार्डियक मसल के एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम यूज की और स्केलेटल मसल के पहले से स्टोर्ड कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। सो सारी उम्र अपने साथ इस कॉन्सेप्ट को आपने रखना है, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तो आप लोग डिटेल से फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत सारे सेल्स में सोडियम की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स में सोडियम की वजह से है, लेकिन कुछ सेल्स में फॉर एग्जांपल कार्डियक सेल्स में कैल्शियम चैनल्स होते हैं और कैल्शियम चैनल्स हमारे मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को बरकरार रखता है, तो उसमें भी इसके एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम का रोल है। मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी څه مطلب ستاره شیما سدي کوېسچن څه دی؟ زمانه دا شته کور فرانه پاتې نشي ښه څه خبرې به ته بیا وښیم ټولې په جمع نه کېږي، ټایم ختمېدو والله ها سلایډس چې مې پریپیر کړي دي چې دا کمپلیټ کړو کلیر دی دې ته لږ لیمیټډ شي ټایم وی نو بیا ما ته نور هم څه مسله به نه وه ځکه دا اوس دلته ټایم به پې لګي ښه په دې باندې
پوه شو مستا په دغه باندې ټایم به لګي دا تاسو په دا به کلیر شي تاسو دا پته کیږي تاسو نه ٹھیک ہے these are exceptions should be discussed in appropriate places not here membrane excitability बहुत important concept है कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम सोडियम चैनल्स पे उसका इफेक्ट है ये कंप्लीटली स्टडीड नहीं है लेकिन इतना आपने याद रखना है कि कैल्शियम सोडियम चैनल्स को अपने काम से मतलब रोकता है तो कैल्शियम ब्लड में अगर कैल्शियम इंक्रीज होगा इंटरस्टिशियम में अगर कैल्शियम इंक्रीज होगा तो जो सोडियम चैनल्स है न्यूरॉन्स के वो अपना काम सही नहीं करेंगे सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे आसानी से सोडियम चैनल आसानी से नहीं खुलेंगे तो मेम्ब्रेन की जो एक्साइटेबिलिटी है जो एक्शन पोटेंशियल है वो आसानी से पैदा नहीं होगा सब कंफ्यूज उसामा सब कंफ्यूज उसामा शाबा टाइम खत्म दो है हाँ द मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी वाला मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी वाले पॉइंट के अगर बारे में आप लोग कह रहे हैं तो मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी के पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ये आपको आसानी से मिल गया इफेक्ट ऑन सोडियम चैनल्स मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को कैल्शियम कम करेगा क्यों क्योंकि वो सोडियम के चैनल्स पे एक्शन करेगा अच्छा ये तो आसान फंक्शन है बोन मिनरलाइजेशन बोन कैल्शियम सर्व एज अ कैल्शियम रिजर्वायर इस पे मैं बात कर चुका हूँ विच कैन इजीली बी मोबिलाइज्ड जिसको हम जरूरत के वक्त आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है खैर दे 5-10 मिनट पर सेवा वालू ब्रेक थे तो मसला नहीं था बल क्लासरूम पर 2 बजे जमा दे सेकंड ईयर वाला सर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा रोल है वो स्टेप है प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करता है बता सब डिटेल हुआ है देखा फैक्टर 4 दे कैल्शियम ची देगा फैक्टर 4 दे इस मसला नहीं याद कही कैल्शियम इज फैक्टर 4 अच्छा तो ये फंक्शंस है इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्लियर कर लें क्वेश्चन चाहिए क्लियर है कि खाची जमा के लाड शमा देर में तो आसान को गोरे गोड़ा दा खबरी पे बदी की तोस तैयारी लेके चे मसल कंट्रैक्शन के इदा हर मेडिकल स्टूडेंट तैयारी चे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के इदा हर स्टूडेंट तैयारी हार्मोन्स दा बतास तैयार ची फाइनल ईयर पूरे सब बदन यरीगी इवन दा बदनम यरीगी चे कैल्शियम को फैक्टर दा याद की सेकंड मैसेंजर बदनम नहीं यरीगी दा बदनम यरीगी चे यारा पर मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी की सर रोल हो दा याद की ना नूर बतास तो खुद ब खुद यादीगी ठीक था अब दो पॉइंट्स बदन यरीगी दा याद की हां बकाया बतास तो टूल उम्र की खपल यादी हाँ रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आपके कोर्स में इतना नहीं है आपकी सिलेबस की आउटलाइन में रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम इतना नहीं है इसको मैं ये अभी सेकंड ईयर को मैं पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी वो मैं कर लूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं जर बताऊँ हमारे बॉडी का जो कैल्शियम रेगुलेशन है उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है बोन किडनी इंटेस्टाइन हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व है 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व है जिसमें एक का माइनर रोल है सबसे इंपॉर्टेंट पीटीएच कैल्सिट्रायोल कैल्सिटोनिन का माइनर रोल है 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है 3 ऑर्गन्स 3 हार्मोन्स 4 प्रोसेसेस एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन रीएब्जॉर्प्शन इन किडनीज बोन मिनरलाइजेशन बोन डीमिनरलाइजेशन ये 4 प्रोसेसेस किसी न किसी शक्ल में हमारे बॉडी में कैल्शियम की होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं ठीक है अच्छा ये एक मेमोरी एड है ये स्लाइड्स आपको मिलेंगे आपने बस ये कैल्शियम के जो फंक्शंस है उसके लिए बनाया गया है बीसीसीआई मींस है हर्ट्स मरा बतूल खल्क जुलूने को बीसीसीआई द इनवान वो जो बीसीसीआई है वो कम क्रिकेट बोर्ड छे वो जो डेर गटुल रहे नो ना बता सब ऐसा हुआ मचे दे वर्ल्ड सा मतलब दे ना कंप्लीट को दल पे टाइम ना जाए को याद भाई कई बीसीसीआई मींस है हर्ट्स हां पीटीएच दे मानी बम ज क्विक जमा जगह एंडोक्रिनोलॉजी आप लोगों के कोर्स में सेकंड ईयर में है तो इस पे मैं जल्दी वो करूंगा इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल पीटीएच का नेट इफेक्ट क्या है वो कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज करता है क्यों कैसे एक डायरेक्ट एक्शन से और एक इनडायरेक्ट एक्शन से डायरेक्ट एक्शन किडनी पे है किडनी पे एक्शन क्या है ये किडनी के ट्यूब्यूल्स पे एक्शन करता है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है तो यूरिन की कैल्शियम दिन नौजी ब्लड तब वापस जी मुझे कम प्रोसेस की रीएब्जॉर्प्शन की तो बोन के सके स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन कैल्शियम ट्रायोल को विटामिन डी देखे ना वाह वाह वाह
विटामिन डी, विटामिन वो कौन से विटामिन है जो हार्मोन्स है, उसमें एक विटामिन डी है। ये कॉन्सेप्ट में मत क्लियर को, हाँ इट इज अ विटामिन, सॉरी इट इज अ हार्मोन। हाँ, बोन स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन एंड इनहिबिट मिनरलाइजेशन। तो ये भी आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन आपने अभी इतना याद रखना है, बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है बोन राकनल नहीं, तो बोन राकनी और कैल्शियम के ब्लड तवले, ये तो रिजॉर्प्शन हुई। तो पीटीएच बोन रिजॉर्प्शन कराता है और मिनरलाइजेशन को रोकता है, दागी उल्टा ठीक छो, सीमट लगावल ना मिनरलाइजेशन दे, और अगर सीमट वापस राकनल ना रिजॉर्प्शन दे। तो पीटीएच एक को इनहिबिट करता है और दूसरे को स्टिमुलेट करता है, तो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ाता है। इसका इनडायरेक्ट एक्शन क्या है, दगत बकारून को पीटीएच का फल गई इंटेस्टाइन पे, इसका इनडायरेक्ट एक्शन है एमसीक्यू के लिए, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ कैल्शिट्रायोल। डबल एक साथ बात हुई नहीं, पीटीएच विटामिन डी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विटामिन डी फिर जाके इंटेस्टाइन पे एक्शन करता है। तो इंटेस्टाइन पे जो एक्शन है वो कैल्शिट्रायोल का है डायरेक्ट, लेकिन पीटीएच का क्या फंक्शन है, पीटीएच कैल्शिट्रायोल बनाता है, तो पीटीएच इनडायरेक्टली इंटेस्टाइन पे एक्शन करता है। ठीक है, क्लियर कट मॉडल तरीके। हाँ, कैल्शिट्रायोल एक्टिव विटामिन डी क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ये भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये कौन से प्रोसेस करता है, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन वाया कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, एमसीक्यू दल तदार है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इंटेस्टाइन में म्यूकोजा में विटामिन डी ज्यादा कर लेता है, तो कैल्शियम ज्यादा बाइंड होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजल सेल्स दी ताकि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से वाकई। रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज, किडनीज में भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है डायरेक्टली। बोन पे भी डायरेक्ट एक्शन है, डीमिनरलाइजेशन इन बोन। आपका खबर द रिजॉर्प्शन दायोटा की दी मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन का दूसरा नाम रिजॉर्प्शन। हाँ, नोट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव विटामिन डी मतलब कैल्शिट्रायोल पीटीएच इज इंपॉर्टेंट। पीटीएच नहीं होगा तो विटामिन डी पैदा नहीं होगा। ये आप लोग सेकंड ईयर में शायद पढ़ लिए, आप लोगों ने शायद विटामिन में पढ़ा हो, मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि इस बार विटामिन मतलब आप लोगों ने मैडम ने पढ़ाई होंगे। ठीक है, शायद ये सेकंड ईयर में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, दिस इज द मेन टॉपिक इन सेकंड ईयर, हार्मोन्स। समझ में आ गई? नेट इफेक्ट अशोक, विटामिन डी हम ब्लड कैल्शियम लेवल से वाकई, पीटीएच हम ब्लड कैल्शियम लेवल से वाकई, टेक होम मैसेज दादे। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन इज having very minor role। कैल्सिटोनिन पीटीएच का पता, इसका दूसरा नाम है पैराथॉर्मोन, ये पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। विटामिन डी, विटामिन डी हमारे बॉडी में इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, स्किन, लिवर, किडनी, विटामिन डी तासो के दादरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व। कैल्सिटोनिन कहाँ से आता है, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड की सी सेल से आता है, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। इसके सारे काम पीटीएच से अपोजिट है, लेकिन विटामिन डी फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो कैल्सिटोनिन का कोई एक्शन इंटेस्टाइन पे नहीं है। कैल्सिटोनिन पीटीएच की जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसके उल्टा काम करता है। तो कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस इज डैश। और एमसीक्यूज के आंसर सही, पीटीएच, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन और ननी। पीटीएच, शाबाश, आप लोगों ने पीटीएच वो रखना है। यदि हर किस मतलब दाना रहे कैल्शिट्रायोल जरूरी न रहे, तो प्राइमरी हार्मोन इज पीटीएच। पीटीएच ना होगा तो विटामिन डी भी नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मेशन में भी उसकी भी हेल्प करता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज पीटीएच। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया तास्ता लेवल नॉर्मल दर, उस नॉर्मल लेवल से अगर कैल्शियम की मकदार ब्लड में कम होगी, इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसकी छोटे छोटे काजेज आप लोग नोट कर ले। डिक्रीज जीआई एब्जॉर्प्शन, किसी वजह से इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम होगी। डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, बोन राकनलू की समस्या लेता, बोन राकनले की गिना, तो बोन राकनले की गिना तो उसकी मिनरलाइजेशन ज्यादा होगी, तो मिनरलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया। द टू घट वजह पदे कि पैराथायराइड हार्मोन मसली, पैराथायराइड हार्मोन की कमी होती है। पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से बोन रिजॉर्प्शन भी रुक जाती है, मिनरलाइजेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो पैराथायराइड हार्मोन डिफिशियंसी इज एन प्राइमरी पैराथायराइड हार्मोन डिफिशियंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। दाबत तैयारी जो बद स्लाइड्स की चेंजेस वो कम खैर दे नूर भाई क्लियर कमा। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के
यस शाबाश सिम्टम्स सही वहां पे निमोनिक के रागोन कड़ी केट्स कन्वल्जन्स कन्वल्जन्स का मतलब है सीजर्स झटके बराजी वाले झटके फिट्स एरिथमियाज मसले ढेर खराब असर दे हाइपोकैल्सीमिया ढेर खराब असर दे एरिथमियाज काज करता है रिदम प्रॉब्लम्स ठीक है रिदम प्रॉब्लम्स अच्छा सी का क्या मतलब है सॉरी ठीक है टेटेनी टेटेनी मसल जो कंट्रैक्टेड स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल दोनों में कुछ ज्यादातर स्केलेटल मसल आपने याद रखना है स्केलेटल मसल्स में कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन स्पाज्म इसको हम कहते हैं टेटेनी ठीक है और एस एस का मतलब क्या है स्ट्राइडर स्ट्राइडर दा सासड़ेली के ना दा लेरिंग्स के दा लेरिंग्स रतन की आवाज की इसको हम कहते हैं स्ट्राइडर तो सी का मतलब कन्वर्जन ए का मतलब एरिथमियाज टी का मतलब टेटेनी स्केलेटल मसल्स में टेटेनी एस का मतलब है स्ट्राइडर्स ये है सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया कल सूच तो कि दा टूल एक्सप्लेन कीगी नेक्स्ट आप बात एक्सप्लेन करना का टाइम हो हाँ हाइपरकैल्सीमिया काज इस तरह पखपल होता सूत्र कई इंक्रीज जीआई एब्जॉर्प्शन इंक्रीज लॉस फ्रॉम बोन डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ना टूल सिंपल दगा दे क्लिनिकल फीचर्स आप लोग मेडिकल में ये निमोनिक बहुत ज्यादा सुनोगे मेडिसिन पर आखिर पूरे भैया हो रही बोन स्टोन्स ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स इसमें बोन्स की प्रॉब्लम होती है ठीक है बोन पेन्स भी होते हैं स्टोन बनते हैं कैल्शियम स्टोन बजूड़ेगी ग्रोन्स दड़ कई सड़े एब्डोमिनल पेन ही पकी यहाँ पर नोर ऑर्गन्स की दड़ी ठीक छो दा पेन ते इशारा कई साइकिक झटके था कन्वल्जन्स फिट्स आप लोग मेडिकल स्टूडेंट है ठीक है आपने दगमा पुख्तों की तास्त पावल जलू है लेकिन अभी आपने कन्वल्जन्स के लिए फिट्स का टर्म इस्तेमाल करना है ठीक है फिट्स सीजर्स मेडिकल टर्म सीजर्स फिट्स साइकिक मोन्स का मतलब है साइकिक प्रॉब्लम्स तो हाइपरकैल्सीमिया में बोन्स प्रॉब्लम होते हैं स्टोन्स बनते हैं किडनी में या रीनल सिस्टम में पेन होता है एब्डोमिनल पेन एटसेट्रा या बोन पेन साइकिक मोन्स साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन एटसेट्रा ठीक है तो ये हाइपरकैल्सीमिया थोड़ा एमसीक्यूज को वो कर लो विटामिन डी एक्शन ऑन गट नो डायरेक्ट इफेक्ट विटामिन डी खबर सही था विटामिन डी का गट पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट है हाँ डायरेक्ट इफेक्ट है विटामिन डी का ना हाँ ब्रेन भी इफेक्ट होता है असल में न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं ठीक है न्यूरॉन्स ये एमसीक्यू लड़ा कि पदी टेमो 5-10 मिनट बदल एक्स्ट्रा दर कम शाता बलर चु खैर दे विटामिन डी एक्शन ऑन गट अगर पीटीएच से बा कामरा ना पीटीएच का इनडायरेक्ट एक्शन था गट पे विटामिन डी के जरिए विटामिन डी तो डायरेक्ट एक्शन करता है गट पे अकल तेरी गलतियों को करना विटामिन डी हैज डायरेक्ट एक्शन ऑन द गट और वो डायरेक्ट एक्शन क्या है कि इंक्रीज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स गलत स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर ले इंक्रीज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो डायरेक्ट एक्शन है म्यूकोजा के सेल्स में जाके विटामिन डी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को इंक्रीज कर लेता है और उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है तो पहला वाला ऑप्शन गलत है वो पीटीएच के लिए सही है इंक्रीज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ये सही है there's no role in calcium homeostasis गपी लगावल नन बी ऑप्शन ना होता तो नन ठीक होता एसिडोसिस काजेज क्या वे लखानो क्लिनिकल एसिडोसिस काजेज हाइपोकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया नन कैन काज बोथ बोथ पॉलिकल या शाबाश हाइपरकैल्सीमिया ठीक है और अगर ये अल्कलोसिस होता अल्कलोसिस काजेज गुरे ताज़ ट्रेन कोमा दा तासो फर्स्ट ईयर वाले तास तो आसानी खबरी बमुनको दा मैट्रिक वाला बशान एसिडोसिस चिकम देगा हाइपरकैल्सीमिया कास कई दा बे ता उल्टा कड़ई ची एसिडोसिस प्रोड्यूस द फॉलोइंग सिम्टम्स बदले तो क्या दर कड़ी हाइपरकैल्सीमिया वाले सिम्टम्स बदर कड़ी हाइपरकैल्सीमिया सिम्टम्स कम शाता मुंगा कैल्सीमिया सिम्टम्स हुए उल्टा बोन्स स्टोन्स बोन्स सब इधर कड़ी के ना तो ये इनडायरेक्ट ऐसी भी आ सकता है ठीक है लेकिन अगर आप लोग आज इतना भी याद रख ले कि एसिडोसिस काजेस हाइपरकैल्सीमिया तो मैं दिस इज एनफ फॉर मी वो स्टार्स तसले की एक्सप्लेन को महा द दीदे पर ज्यादा क्वेश्चन इसना
हाँ फॉस्फेट बारह की उसको खबर याद हुआ भाई। फॉस्फेट की सोर्सेज, कैल्शियम की जो सोर्सेज है वो फॉस्फेट की सोर्सेज है, ठीक है। फॉस्फेट सोर्सेज और द कैल्शियम सोर्सेज सेम भी तकरीबन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब फॉस्फेट पीटीएच का उस पर क्या एक्शन है, फॉस्फेट पे कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है, कैल्सिट्रायोल का क्या फंक्शन है, अभी आप लोग पढ़ सकते हैं खुद, माता असलक आसान को मेरे तकार फॉस्फेट तासो पूरा हद पूरी पखपल बांधी वेले शेखा albumin suzake baya trati gore da wasada wa pharmacology ki da suzake dum ډېر پکاريږي کنه چې دا تاسو سم د خبر بیل ته یادې ښه albumin da suzake baya trati دا باندې روي دا سوداکین دا مغناطیس هم دی عام طور مغناطیس ځان بس اوپر دغه راکاږي آیرن مایرن راکاږي وسپنه راکاږي دی په ځان بس اوپر راکاږي نو د دوه دي سوداکین مغناطیس دا مغناطیس څه کې دا د فزیولوژي ولا وای نن خو زمونږ د سوداکی ولا فنکشن په کار شو ښه لږ تاسو دا اوس کوم کې ایکسترا پوینټس ته که څوک ستړي شوي که نه نو تاسو دا کلاس لیو کولی شئ 5-10 منټه زه خپل ایکسټرا در کوم خو ډېر امپورټنټ کلینیکل پوینټ دی که څوک یې زده کوئ نو کښېنئ हाँ द हाइपर कैल्सीमिया आपका जो लेक्चर है जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी तकरीबन वो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर ली है। इतना अगर आप लोगों को आएगा तो दिस इज वेरी मच इनफ, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा आएंगे तो ये बोनस पॉइंट्स है, ठीक है। दैट्स ग्रेट आई वुड से देन एक्स्ट्रा पॉइंट्स से भी आगे तक बोले स्लाइड्स बजमा खाम दगल ورکم زیاسب لبه ورکم زیاسب به تاسو لدر کی سی ار تبهم سند کما سی ار بهم تاسو ټول لدر کی ها زبدې کې لګي خپل تصویران شاملوم او لګ چینجز پکې کوم تاسو به ملو شي ته سلاید تاسو نو ملو شي خو دا غي سری زنزو دا به ملو شي ٹھیک ده اے شیما ته ټول سبق نه زده کې زمانہ ډایبټیز میلایټس او ډایبټیز انسیپیټس باندې جدا جدا ډیزیز دي په باندې کې ډایبټیز دي هغه تاسو ارینج کړئ کنه چټیاں کله نه دي زما خل 22 نه چټیاں نه پکې دی بس ته چې زویا हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया देखो अलग हो रही हाइपोकैल्सीमिया ज्यादातर आप लोगों ने मुझे हाइपरकैल्सीमिया की ना हाइपरकैल्सीमिया यो एसिडोसिस मेसिडोसिस वाला कांसेप्ट تاسو زده کو اختر په ورځ نه موږ دومره لیونی نیو چې اختر په ورځ کلاسونه الو دومره ټینشنیان هم نه اختر وکاو که خیری په احتیاط سره ها اوس د پوینټ ته وخت ښه د شپ داشته ګورو हाइपरकैल्सीमिया په एसिडोसिस और अल्कलोसिस کې څه تاسو زده کړو तो تاسو ماته دا پوائنट हुआ है अगर किसी बंदे को हाइपरकैल्सीमिया होगा तो उसके न्यूरॉन्स पे क्या एक्शन होगा, न्यूरॉन्स पे क्या एक्शन होगा। ज़ेट आसानों में फंक्शंस में हम पढ़ चुके कि कैल्शियम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, बंदइए न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं। तो जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो न्यूरॉन्स डिप्रेस होंगे, ना डिपोलराइजेशन बसंग रो रहा कैल्शियम د سیوا کړو ټول سوډیم چینل د مرینه ونی وي بند کړي سوډیم سیل ته نشي نه وته نو डिपोलराइजेशन विल नॉट अकर दैट इज करेक्ट। डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं होगा, तो एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं होगा तो मसल तो नर्व्स की वजह से काम करते हैं स्केलेटल मसल्स, तो नर्व्स नहीं होंगे तो स्केलेटल मसल में क्या पैदा हो जाएगी, वीकनेस। ډیر وخت خلکو دا کانسپټ کلیر نه چې هاي کیلشیم په مسل سره ډایرکټ دا ډایرکټ اکشن نه لري کنټرکشن والا دا کنه دی هغه نو بیا خو کیلشیم سیوا شوی دی په کار د مسل کنټرکشن کوله خو हाइपर कैल्सीमिया जो पहले इफेक्ट करता है वो मसल्स को इफेक्ट नहीं करता, वो न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। अच्छा यो मरीज दे रहा कैल्शियम लेवल के वाकई शुरू शु तो कैल्शियम लेवल की इंक्रीज की वजह से सबसे पहला ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स डिप्रेस होंगे तो स्केलेटल मसल में वीकनेस पैदा होगी। तो आपने वो पॉइंट क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, हाइपरकैल्सीमिया मेनली अफेक्ट द न्यूरॉन्स नॉट द मसल्स। डायरेक्ट खबर अब को हाइपरकैल्सीमिया मेनली अफेक्ट न्यूरॉन्स।
सही। हाइपोकैल्सीमिया क्या करेगा? हाइपोकैल्सीमिया टेटेनी, शाबाश। वो क्यों टेटेनी करेगा? हाइपोकैल्सीमिया सेम कॉन्सेप्ट। इतनी एक्सेसिव, ना 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 ना, इतना ज्यादा एक्साइटेशन होगा कि सारे सोडियम चैनल खुल जाएंगे। द कैल्शियम इनहिबिशन तो रखो, कैल्शियम देर कम दे पहुंच के लग देर इनहिबिशन पकारो, वो खत्म हो गया। तो इनहिबिशन नहीं होगा तो इतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, और मसल स्पाजम्स में चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं टेटेनी। जब हाइपोकैल्सीमिया की बात आती है तो टेटेनी, हाइपोकैल्सीमिया टेटेनी, समझते हो? ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया वीकनेस, याद भैया। हाँ, कैल्शियम मेनली एक्सक्रीट की पकम सके दारा लगुआ है। नोबल पॉइंट है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है, मतलब फीसिस के जरिए ज्यादा होती है कि यूरिन के जरिए? एमसीक्यू बेसिक बायोकेमिस्ट्री। नो नो नो, उफायदे का ना कुर्रतुलैन उफायदे। intestine, calcium is mainly excreted in the feces. और डबल मर्गर है फास्फोरस, फास्फोरस इज मेनली excreted in the kidneys। ना कंपेयर कई तो किडनी फेलेवर में फास्फेट बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। डबल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी फेलेवर में फास्फेट एक्सक्रीट नहीं होगा। तो एक्सक्रीट नहीं होगा तो हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, फास्फेट लेवल बढ़ेगा। और फास्फेट लेवल की सेवा की कैल्शियम सर बस की शायद आखिर पॉइंट रहता हुआ है कि बस फास्फेट लेवल अगर बढ़ेगा तो फास्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड होगा। कीमिया हाइपरफॉस्फेटीमिया के ज्यादातर जो सिम्टम्स है वो हाइपोकैल्सीमिया की तरह है। द रूल्स कैल्शियम फास्फेट मेटाबॉलिज्म की याद के सेवा केबल कमी की फास्फेट सेवा को वेलकम शो क्लियर जमादान ने सबक था उसका जब मैं सबक माता सुनन को तो जैसा क्वेश्चन ही करना कदी की नो कई जलक दमो का मामूल जो कमा अगर पिंजमेंट दल दर को ले शमजई क्वेश्चन वो कई क्वेश्चन तो खुशहाली कम दो aku pati na ni topic ko kay dir khabo kay poshe yi ino खुदा पता लगी जब पोश की टेटनी गोरा टेटनी बल सनद है